Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 25 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल अफेयर्स की, और नेशनल अफेयर्स में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने भी विजिट किया उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इनकी विजिट थी 20 से लेके 22 नवंबर तक, एंड यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें इनॉग्रेट करी। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है ना, वो है EMRS स्कूल कैंपस। ये एक EMRS कैंपस इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? मयूरभंज ओडिशा में। ये EMRS है क्या? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। करेक्ट। अब ये EMRS होता क्या है, सबसे पहले यही देख लेते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका एम रहेगा कि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स है उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, आई रिपीट, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द ट्राइबल स्टूडेंट्स। EMRS स्कीम को 1997-98 में इसको लॉन्च किया गया था, एंड इस स्कीम को मॉनिटर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। और इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी वो कौन सी है? NESTS, जो कि है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किए थे 452 नए EMRS स्कूल्स इन एवरी ट्राइबल ब्लॉक विद 50% और मोर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। ठीक, पहली चीज तो हो गई EMRS, ये इसका कैंपस अभी इनॉग्रेट किया इन्होंने। दूसरी चीज याद रखेंगे, 3 नई ट्रेन्स को इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया था मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में। तीसरी चीज याद रखेंगे, इन्होंने यहीं पे कैंपेन लॉन्च किया, एजुकेशन कैंपेन, जिसका नाम रहेगा न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। राइट, ये नए कैंपेन का नाम है जो कि इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, एंड ब्रह्म कुमारी इसके द्वारा इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इसको लॉन्च किया गया। अगर इसके बारे में बात करें, एजुकेशन कैंपेन जो कि है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, इसकी बात करें तो कहाँ पर? ये ब्रह्म कुमारी इसका नया कैंपेन है, संबलपुर ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया, एंड ब्रह्म कुमारी ईश्वरय यूनिवर्सिटी के द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया था, जहाँ पे इस कैंपेन को इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। जो मेन एम रहेगा इस कैंपेन का वो क्या है? टू इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स, जो हेल्प करेंगी क्रिएटिंग अ बेटर सोसाइटी। इन्हीं के द्वारा इसकी जो इंपॉर्टेंस है मॉरल एजुकेशन, उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई, उसके बारे में इंपॉर्टेंस उसकी बताई गई। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ अभी किन को चेयरमैन अपॉइंट किया गया है या चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया? मास्टर कार्ड इंडिया का। तो मास्टर कार्ड इंडिया के अभी कौन अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन? वो है फॉर्मर SBI चीफ रजनीश कुमार। रजनीश कुमार, इनको यहाँ पे चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया मास्टर कार्ड इंडिया का। ठीक, फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ अभी पेटीएम ऑडिटर कौन अपॉइंट किए गए हैं? पेटीएम
ऑडिटर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है आर बातलीबोई, राइट। इनको नया अपॉइंट किया गया एज अ पेटीएम ऑडिटर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये 3 चीज याद हो गई। फिर एक चौथी और यहां पे याद रखेंगे, वो क्या है, इन्हीं के द्वारा यहां पे याद रखेंगे, शी ग्रेस्ड द कन्वोकेशन ऑफ वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो ओडिशा में है, एंड श्री सात्य साई यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में। इन 2 यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में इन्होंने ग्रेस किया अपनी प्रेजेंस से। फिर अगर उड़ीसा की बात की जाए, अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है, रघुबार दास, ये अभी अपॉइंट किए गए हैं। कैपिटल क्या रहेगी, भुवनेश्वर। और यहाँ पे नेशनल पार्क भी याद रखेंगे, एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क और दूसरा है भीतरकनिका नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इस्कॉन फॉर नशा मुक्त भारत अभियान। जो ड्रग अब्यूज है उस पर रोक लगाने के लिए, उसके लिए नए नए इनिशिएटिव लाके लोगों को यहाँ से ड्रग से अलग करने के लिए, बिकॉज ड्रग अब्यूज क्या होता है, आपकी जिंदगी ये कहीं ना कहीं खराब कर देगा, राइट। ड्रग्स हम यूज करते हैं मेडिसिन में भी, लेकिन वो जो ड्रग्स होते हैं ना, वो डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब ड्रग्स होते हैं, एंड वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमारी बॉडी को जरूरत होती है टू कॉज अ चेंज। लेकिन जो ड्रग अब्यूज होता है उसमें क्या होता है, इन्हीं मेडिसिन के जो अमाउंट होता है, जो क्वांटिटी होती है ड्रग्स को, जब हम उसको एक्सेस में लेते हैं, राइट, अब वो किसी भी चीज के ड्रग हो सकते हैं, अलग अलग ड्रग्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, राइट। और हमारी कहीं ना कहीं जो व्यक्ति उन ड्रग्स को कंज्यूम करता है उनकी लाइफ पे काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, उसको इससे छुटाने के लिए, ड्रग्स अब्यूज से बाहर लाने के लिए, ड्रग से बचाने के लिए, वीमेंस को, गर्ल्स को, यंग बॉयज को, मैन को, ताकि वो ड्रग की इसमें फंसे ना, लत उन्हें लगे ना, इसी के लिए यहाँ पर किसने, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, किसके साथ, इस्कॉन के साथ। अब इस्कॉन की बात करें, इस्कॉन याद रखेंगे, इनकी एक पूरी टेंपल की चेन होती है, राइट। श्रद्धांजलि यहाँ पे दी जाती है लोगों के द्वारा, काफी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इसकी एक फुल फॉर्म भी है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इस्कॉन है, राइट। तो इन्होंने ही एमओयू साइन किया किसके साथ, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने साइन किया एमओयू इस्कॉन के साथ, ताकि नशा मुक्त भारत अभियान पे वर्क किया जा सके और ये जो ड्रग का इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है इसको रोका जा सके। ये जो नशा मुक्त भारत अभियान है, इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे वाले दिन 2020 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ताकि जो ड्रग सब्सटेंस का अब्यूज है उसको रोका जा सके। ठीक, चलिए फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए, अभी रिसेंटली यस बैंक ने किस प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप करा ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है उसको एनेबल किया जा सके, तो ये है ब्रिस्क पे। ठीक है, ब्रिस्क पे के साथ। फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ, अभी कितने लोगों को या कितने आर्टिस्ट को संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड से कितने आर्टिस्ट को सम्मानित किया गया, तो 84 आर्टिस्ट को यहां पे सम्मानित किया गया था। देन सिंगापुर की टॉप फेलोशिप से किनको सम्मानित किया गया, तो सिंगापुर की टॉप फेलोशिप से सम्मानित किया गया था हेमंता बिस्वा शर्मा जी को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड CSIR, इन दोनों के बीच में भी एक MOU साइन हुआ ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके डिफेंस टेक्नोलॉजीज के ऊपर। जो नई नई टेक्नोलॉजीज है, हम उसमें क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उन टेक्नोलॉजीज को हम अपग्रेड कर सकते हैं, क्या नई टेक्नोलॉजीज को हम अपने डिफेंस फोर्सेस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, राइट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजीज में इनकॉर्पोरेट करके उसको और बेटर कर सकते हैं, कैसे UAVs अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल जैसे आपके जो ड्रोन्स हो गए, इनकी मदद से कैसे हम अपने फोर्सेस को और ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसी के लिए एक MOU साइन किया गया था बिटवीन हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड CSIR के बीच में, एंड ये न्यू दिल्ली में ये MOU साइन हुआ, जहां पर हम देखेंगे CSIR की लैब्स, हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड इनके बीच में जो काफी सारी जो आर्म फोर्सेज हो गई, हमारी इंडिया की 3 आर्म फोर्सेज हैं, जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन फोर्स, इन सब के बीच में मिलकर कोलैबोरेशन होगा। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी कि नए नए हम साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को, टेक्नोलॉजीज को हम अपनी फोर्सेज में इनकॉर्पोरेट कर सकें।
नेक्स्ट आ जाते हैं एक एक्सरसाइज के ऊपर, ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज है 2023 में, इसका भी सेकंड एडिशन हमें देखने को मिला था। ऑस्ट्रा हिंद पूछा जा रहा है ये ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज किस कंट्री में कंडक्ट कराई गई। तो सबसे पहले याद रखेंगे जो ऑस्ट्रा हिंद है ना, ये किन कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज कराई जाती है। तो सबसे पहले ये है आर्मी के बीच में, बिटवीन इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। इस बार की जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी ऑस्ट्रेलिया, राइट। ऑस्ट्रेलिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी 2023 की। वहीं पर क्योंकि ये सेकंड एडिशन हुआ, अगर मैं बात करूं फर्स्ट एडिशन की एक्सरसाइज कहां पर हुई थी, तो ये राजस्थान में हुई थी फर्स्ट एडिशन 2022 में, लास्ट ईयर, करेक्ट। ऑस्ट्रा हिंद। फिर अब याद रखेंगे इस ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो 60 पर्सनल आए थे फ्रॉम द बटालियन, और उस बटालियन का नाम जरूर याद रखेंगे, गोरखा राइफल्स। ठीक है, गोरखा राइफल्स ये आपके बटालियन का नाम रहेगा। या इसके 60 पर्सनल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। एक ऑफिसर था इंडियन नेवी का और 20 ऑफिसर्स थे आपके इंडियन एयरफोर्स के, जिनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला फ्रॉम इंडिया इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। फिर इसी के अलावा दो और एक्सरसाइज याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी 2025 में कराई जाएगी। एंड यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इन्वाइट भेजा टू पार्टिसिपेट इन तालिस्मान सेबर एक्सरसाइज में इंडिया का पार्टिसिपेशन के लिए ये ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए इनको इनविटेशन भेजा। फिर एक और एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट कराएगा, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी तरंग शक्ति, और ये कब होगी, 2024 में होगी, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी। चलिए, तो यहां देख सकते हैं ऑस्ट्रा हिंद, इंडियन मिलिट्री और इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में दूसरा एडिशन था ये एक्सरसाइज का, ऑस्ट्रा हिंद। और इस बार कहां पर हुआ था, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिला। अभी ये एक्सरसाइज ऑनगोइंग है 22 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में। मूविंग ऑन, किस कंट्री ने अभी इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट? किस कंट्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट? तो वो रहेगा यूएई। पहली चीज तो ये याद रखेंगे, और ये कहां पर, अबू धाबी में इन यूएई, ये आपका लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट रहेगा। 2 गीगावाट ऑफ एनर्जी को ये जनरेट करेगा। इसका नाम क्या रहेगा, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस पर्टिकुलर वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट का नाम क्या है? अल डाफरा सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट, ये नाम रहेगा अल डाफरा सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। ये आपके वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट का नाम रहेगा। 2 गीगावाट का आपका ये प्लांट रहेगा, और कहां पर है, ये अबू धाबी यूएई में। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं यूएई की स्टेट ओन्ड कंपनी मसदार धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी, करेक्ट, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट 2 गीगावाट का रहेगा, और कहां पर है, अबू धाबी यूएई में। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया $500 मिलियन का एक लोन फॉर हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन इन महाराष्ट्र स्टेट में हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बढ़ा सकें, बेटर इक्विपमेंट्स, बेटर टेक्नोलॉजी से हेल्थ केयर सेक्टर में इंप्रूवमेंट ला सकें और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें टू द सिटीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। एंड जो मेडिकल एजुकेशन है, बच्चों को जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो नर्स की एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनको बेटर मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, बेटर इंस्टीट्यूशंस हो सके, बेटर यूनिवर्सिटीज़ हो सके, बेटर करिकुलम हो सके। उसके लिए यहाँ पर अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने $500 मिलियन का यहाँ पर एक लोन अप्रूव करा है? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और यहीं पे याद रखेंगे L&T फाइनेंस ने भी अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टाई अप करा, जहां पे उनको $125 मिलियन की फंडिंग अप्रूव की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मत्सुगु आसाकावा यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर रहेगा। 1966 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक $500 मिलियन का लोन हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए इन महाराष्ट्र स्टेट, राइट। चलिए, फिर यहीं पे नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है द ग्लोबल फंड। इन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ? आई रिपीट, अभी द ग्लोबल फंड ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करा ताकि, और एक MOU साइन करा ताकि जो क्लाइमेट चेंज से हमारे ह्यूमंस की बॉडीज पे हेल्थ पर इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर वर्क करा जा सके। तो ये सबसे पहले याद रखेंगे, ये है वर्ल्ड बैंक, करेक्ट। इन्होंने टाई अप करा है द ग्लोबल फंड के साथ। ये MOU साइन हुआ
और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल प्रोसेस समझते हैं, हम कुछ बर्न करेंगे तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा। अब वो पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में जाएगा, उससे हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ेगा और हमारे जो हम जैसे सांस लेते हैं, आपने देखा था इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन की न्यूज़ चल रही थी, दिवाली पे पटाखे बैन भी कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। तो वो रीज़न क्या था कि पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो आप देखेंगे कि जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारी लंग्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा राइज हमें देखने को मिला। इवन हम देखते हैं कि जब पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो नॉट जस्ट इवन इन इंडिया, हम देख रहे हैं ग्लोबली ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। और पॉल्यूशन से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे जो अलग अलग हेल्थ पर चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं बॉडीज में ह्यूमंस की, उस पे यहाँ पे हेल्प करने की बात की गई। इवन हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज होगा ना, उससे बोला गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि 132 मिलियन लोग बाय 2030 पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, राइट। फिर यहीं पे एक और डाटा याद रखेंगे, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, ये एमओयू की, जो ग्लोबल फंड और वर्ल्ड बैंक के बीच में हुआ, यहाँ पे बात की जाएगी कि जो मलेरिया हो गया, मलेरिया जैसी डिजीज, HIV, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, इन पे वर्क किया जाएगा कि कैसे हम इनको रिमूव कर सकते हैं, कैसे इनको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। हम अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को और बेटर कैसे बना सकते हैं, कैसे हम इंटरनेशनली नॉलेज शेयर करके एक दूसरे की हेल्थ केयर की टेक्नोलॉजीज को एक दूसरी कंट्रीज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके एंड उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके, राइट। फिर इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल फंड ने ये एमओयू साइन किया इसके लिए। फिर इसी के साथ साथ बताओ, प्रलय, ये एक ब्लास्टिक मिसाइल है, ये किस कंट्री की रहेगी? तो ये हमारी इंडिया की रहेगी, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया कौन सी है, जरा नाम बताओ। बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया कौन सी रहेगी? बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया, वो कहां पर है? पहले तो स्टेट का नाम याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल। फिर विलेज कौन सी रहेगी? वो है कृतेश्वरी विलेज, कृतेश्वरी विलेज, राइट। ये वेस्ट बंगाल में है एंड ये बेस्ट टूरिज्म विलेज रहेगी इंडिया की। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं HSBC एंड UK एक्सपोर्ट फाइनेंस, इन दोनों के बीच में अभी 100 मिलियन पाउंड की फाइनेंसिंग प्रोग्राम का टाई अप किया गया। आई रिपीट, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जो है HSBC इंडिया, इन्होंने अभी एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया UK एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ ताकि 100 मिलियन डॉलर नहीं, 100 मिलियन पाउंड का एक फाइनेंसिंग प्रोग्राम को सेटअप किया जा सके। इसके अंदर क्या होगा, जो MSMEs हैं, राइट, उनको यहाँ पे हेल्प किया जाएगा फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग, करेक्ट। अब इसका आप एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया में, अभी हम ये टॉपिक आगे भी पढ़ेंगे कि अमेजॉन और DGFT जो कि है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनके बीच में भी एक अभी MOU साइन हुआ ताकि इंडिया के जो MSMEs हैं उनसे एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। इसको आप पहले चीज़ तो ये याद रखेंगे कि इनके बीच में ये 100 मिलियन डॉलर पाउंड का फाइनेंसिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश हुआ ताकि MSMEs को हेल्प किया जा सके एंड कॉर्पोरेट्स को फॉर फाइनेंसिंग देयर इंपोर्ट्स फ्रॉम UK। अब इसी के साथ साथ आप एक कंसेप्ट समझिए, पहले हम देख रहे हैं कि जो INR की वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली गिरती जा रही है एज कंपेयर टू दैट ऑफ US डॉलर, राइट। अभी $1 ऑलमोस्ट 83.4 या 83 रुपीज के ऊपर ही चल रहा है अभी, राइट। पहले हमने देखा था ये 85 का भी मार्क टच कर गया है। तो क्यों हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो रुपीज की वैल्यू है वो गिर रही है एज कंपेयर टू दैट ऑफ डॉलर? कई फैक्टर यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। एक तो हम ग्लोबली देख रहे हैं, रिसेशन की न्यूज़ें चल रही हैं, राइट, कि आने वाले टाइम में जल्दी रिसेशन आ सकता है। बॉन्ड यील्ड, फिर आपका देख रहे हैं अलग अलग, हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, टाइटनिंग जो हो रही है US डॉलर की बहुत ज़्यादा, हम बात कर रहे हैं कि US डॉलर को ग्लोबल करेंसी से हटाना है, ब्रिक्स अपनी करेंसी बना रही है, वॉर चल रही है, US ने इतना ज़्यादा डॉलर प्रिंट कर दिया है, राइट। और उसके साथ एक और कंसेप्ट आ जाता है इंडिया में, वो है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, इंडिया में ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हम जो इंपोर्ट करते हैं ना प्रोडक्ट्स, वो ज़्यादा करते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत कम है। इससे क्या हो रहा है इंडिया में? अभी हमने देखा, पहले मान लो फॉर एग्जांपल एक साल पहले $1 70 रुपए का था और अब 83 का चल रहा है।
राइट। इससे क्या हो रहा है कि जब हम पहले एक्सपोर्ट करते थे कोई चीज़, पहले में $1 के हम, क्योंकि एक्सपोर्ट करें तो डॉलर में सारा ट्रेड हो रहा है, तो $1 पे हमें 70 रुपये मिलते थे। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मैंने कोई चीज़ बेची तो और मुझे $1 मिला तो मेरे पास 70 रुपये आए। अब वो बढ़कर क्या हो गया है, 83 रुपीज़ मिल रहे हैं। मतलब जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं इंपोर्ट का केस देखूं तो पहले मैं कुछ चीज़ें खरीदता था बाहर के देशों में तो मेरे को $1 देने पड़ते थे, मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से मुझे 70 रुपये देने पड़ते थे। वहीं पर अब देख रहा हूं मैं कि मेरे को सेम चीज़ $1 की ही पड़ रही है, लेकिन वो 83 रुपीज देने पड़ रहे हैं मेरे को। और वो भी चीज सिर्फ $1 की नहीं पड़ेगी, जो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, मान लो वो 1.2 डॉलर की पड़ रही है मेरे को। अब वो तो $1.2 के हिसाब से देखेंगे तो डॉलर की वैल्यू भी बढ़ गया वो प्रोडक्ट, और जो हमारा गैप था, जो रुपीज की वैल्यू थी वो भी गिर गई। तो उससे भी मतलब जो हम इंपोर्ट करा रहे हैं चीजें वो और महंगी होती जा रही हैं, राइट। और हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट हम ज्यादा करा रहे हैं और एक्सपोर्ट कम करा रहे हैं, तो इससे ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी जो इंडिया का इनिशिएटिव चल रहा है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, हम एमएसएमईज को ग्रो करने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमईज ग्रो करें और वो एक्सपोर्ट करें प्रोडक्ट्स को ग्लोबली, ताकि जो ये ट्रेड डेफिसिट है ये कम हो सके। और इसी रीज़न के लिए अमेजॉन ने अभी डीजीएफटी के साथ एक एमओयू साइन किया, ताकि डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब की तरह हम बनाएंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट आगे प्रोडक्ट्स को आगे एक्सपोर्ट करेगी, वो एक ही प्रोडक्ट के लिए फेमस रहेगी वो डिस्ट्रिक्ट, राइट, एक ही सेक्टर के लिए। इसीलिए यहाँ पे अमेजॉन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बीच में ये एमओयू साइन किया गया, ताकि एमएसएमईज को यहाँ पे ग्रो किया जा सके, हम डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर किसी प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक बना सके और उस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर सके फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और इस कोलैबोरेशन से क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो है अमेजॉन के कस्टमर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि 200 कंट्री से भी ज्यादा है, उनको यहां पर हम प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे, राइट, क्योंकि अमेजॉन की प्रेजेंस ग्लोबली है, राइट। तो ये भी याद रखेंगे, ये कंसेप्ट अच्छा है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं। फिर अमेजॉन ने अभी वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ भी एक एमओयू साइन किया, सिमिलर रीजन के लिए कि जो एमएसएमईज हैं उनको बूस्ट दिया जा सके एंड वेस्ट बंगाल से जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उनको एक्सपोर्ट करा जा सके ग्लोबली। एंड ये जो एमओयू साइन हुआ था 7th एडिशन ऑफ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान इस एमओयू को साइन किया गया था। एंड किसके अंडर, ये एक इनिशिएटिव के अंडर, जो कि है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट्स को हम यहाँ पर एक प्रॉपर सेक्टर के तौर पे किसी भी प्रॉपर सेक्टर में हम डेवलप करेंगे, उससे जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसको ग्लोबली हम एक्सपोर्ट करने की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस पर। आरईसी को ऑनर किया गया विद बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड से बाय एसोचैम। एसोचैम के द्वारा अभी आरईसी को ऑनर किया गया बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड से। करेक्ट, इट वॉज अवॉर्डेड एट द 4th डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एक्सीलेंस अवार्ड एंड कॉन्क्लेव 2023। ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी एसोचैम के द्वारा न्यू दिल्ली में, एंड यहीं पर इनको बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड से सम्मानित करा गया। करेक्ट, क्यों? रीजन बीइंग क्योंकि ये वर्क प्लेस को इतना अच्छा बना देते हैं, इतना अकोमोडेटिंग बना देते हैं, ताकि डिफरेंट लोग, डिफरेंट स्टेट के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, उनको ग्रो करने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स दिए जाए, राइट। इसीलिए इनको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। एक और चीज याद रखेंगे, आरईसी जो है इन्हीं को बेस्ट सेंट्रल पीएसयू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, बेस्ट सेंट्रल पीएसयू से भी सम्मानित किया गया था एट द डुन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू अवार्ड 2023 के दौरान। आरईसी एक महारत्ना सीपीएससी है, ये भी याद रखेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। अभी एज इट इज न्यूट्रिशन, ये एक फिटनेस एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड है। इन्होंने रविंद्र जडेजा को, जो कि एक क्रिकेटर है, इनको यहाँ पर अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। सिमिलरली अगर मैं एमएस धोनी की बात करूं, इनको एसबीआई के द्वारा अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर। फिर इन्हीं को स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपॉइंट किया था ब्रांड एम्बेसडर। देन जियो मार्ट के ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। करेक्ट, मार्क करके चलना इसको। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्सबाजी ये एक आपका स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है, और इन्होंने अफगान क्रिकेटर राशिद खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। याद रखेंगे कि इन्होंने राशिद खान को, जो कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर है, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, वो है स्पोर्ट्सबाजी। मूविंग ऑन, स्पोर्ट्स पर ही आते हैं। तो अभी वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप हुई थी, तो वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में इंडिया के कितने मेडल्स आए? तो इंडिया के टोटल 3 मेडल्स आए, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए। सिल्वर की बात करें तो किन्होंने सिल्वर मेडल जीता? वो है
रोशिबिना देवी, रोशिबिना देवी इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करूं, खुशाल कुमार एंड छवि रुहेला, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, और याद रखेंगे ये 16th एडिशन है आपका वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप की। ये हुई कहां पर थी? ये हुई आपकी टेक्सास यूएसए में हमें देखने को मिली वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2023 में। 16वां एडिशन है इस वुशु चैंपियनशिप का और इंडिया के 3 मेडल्स आए हैं यहां पर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने अनाउंस किया फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पैरा एथलीट्स के लिए यहां पर ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी लॉन्च किए गए हैं। पहला एडिशन है इसका, कह सकता हूं मैं इनॉग्रल एडिशन है। कहां पर होगा? न्यू दिल्ली में होगा। 10 से लेके 17 सितंबर के बीच में होगा, राइट। और कहां पर होगा? न्यू दिल्ली में। किनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, अनाउंसमेंट की गई? यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई, राइट। मार्क करके चलेंगे इसको। फिर यहां पर पैरा एथलीट्स, पैरा शूटिंग, पैरा आर्चरी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस एंड पैरा वेट लिफ्टिंग वाले इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। तो अभी रिसेंटली जस्टिस फातिमा बीवी, जो कि इंडिया की पहली वीमेन जज थी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। इनको ये गवर्नर ऑफ तमिलनाडु भी रह चुकी हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। एट द एज ऑफ 96 इनका कोल्लम केरला में निधन हो गया था एंड 1927 में केरला में इनका जन्म हुआ था, करेक्ट। और ये पहली मुस्लिम वीमेन जज बनी थी टू बी अपॉइंटेड एट एनी हायर जुडिशरी एंड ये पहली वीमेन बनी थी जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया था, राइट। मार्क करेंगे फर्स्ट वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फातिमा बीवी, जिनका भी निधन हो गया है। एंड ये गवर्नर ऑफ तमिलनाडु भी रह चुकी हैं 1997 से 2002 के बीच। मूविंग ऑन, बुक्स पर आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स। तो अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इनके द्वारा एक बुक को लॉन्च किया गया। बुक का नाम है मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स, राइट, मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया, ये बुक का नाम रहेगा। इस बुक को ऑथर किया गया प्रोफेसर रामेश चंद्र गौर एंड विस्मय बासु के द्वारा। ये बुक ऑथर की गई ड्यूरिंग एन इवेंट जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। आई रिपीट, अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इनके द्वारा एक बुक को लॉन्च किया गया जो कि है मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया एंड इसको प्रोफेसर रामेश चंद्र गौर एंड विस्मय बासु के द्वारा ऑथर किया गया, राइट। मार्क करके चलेंगे। इस बुक में फीचर होती हैं ऑलमोस्ट 424 डायरेक्टरीज ऑफ आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो कंटेन करती हैं वेरियस आर्काइव्स इन दिस बुक, राइट। जहां पे हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, कंजर्वेशन के बारे में, राइट, एंड अलग अलग हेरिटेज के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है कि कल्चर कैसा है इंडिया का, क्या क्या यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। फिर इस बुक को याद रखेंगे पब्लिश किसके द्वारा किया गया, जैसे अभी हमने देखा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स अलोंग विद यूनेस्को के द्वारा इस बुक को यहां पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर। देन हम देखते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने विजिट किया टू ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश फ्रॉम 20 to 22 ऑफ नवंबर। देन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक एमओयू साइन किया इस्कॉन के साथ फॉर नशा मुक्त भारत अभियान। हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड सीएसआईआर ने एक एमओयू साइन किया जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ताकि डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बेटर इक्विपमेंट्स को अपनी फोर्सेज को दे सके। देन इंडियन आर्med फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया इन ऑस्त्रा हिंद एक्सरसाइज 23 ऑस्ट्रेलिया में। यूएई ने इनॉग्रेट किया अल दाफरा सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर प्लांट रहेगा। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $500 मिलियन का लोन फॉर हेल्थ केयर मेडिसिनल एजुकेशन, कहां पर? महाराष्ट्र में। वर्ल्ड बैंक ने, द ग्लोबल फंड ने एक एमओयू साइन किया टू टैकल इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ। एचएसबीसी इंडिया एंड यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस ने टाई अप किया फॉर £100 मिलियन फाइनेंसिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट, अमेजॉन एंड डीजीएफटी इन्होंने साइन किया एक एमओयू टू लेवरेज डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव एंड बूस्ट एमएसएमई एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। आरईसी ऑनर्ड विद द बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी इंक्लूजन अवार्ड बाय एसोचैम। इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपॉइंट किया गया एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एज इट इज न्यूट्रिशन। देन इंडिया ने जीता 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज, मतलब टोटल 3 मेडल जीते इन द 16th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2023 की। अनुराग सिंह ठाकुर ने अनाउंस किया फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स को। देन जस्टिस फातिमा बीवी, जो कि इंडिया की पहली वीमेन जज है सुप्रीम कोर्ट की, उनका निधन हो गया था। एंड आईजीएनसीए ने एंड यूनेस्को ने मिलकर लॉन्च की एक बुक जिसका नाम रहेगा मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की रिवीजन। अब आ जाते हैं कुछ पुराने करंट अफेयर्स की रिवीजन करते हैं जो कि आपकी लर्निंग में काफी बेनिफिट करेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू ब्रांड लॉन्च बाय एनओसीएल? एनओसीएल के द्वारा भी एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया है, पूछा जा रहा है उसका नाम बताइए।
NOCL क्या होता है आपका? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, NCOL, नॉट NOCL, NCOL, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, राइट? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा नया ब्रांड लॉन्च किया गया। ऑर्गेनिक से याद रखेंगे भारत ऑर्गेनिक्स, ठीक। ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग अ 1 डे नेशनल सिंपोजियम, जो था बेसिकली आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। एंड हम जानते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपके ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इससे आपके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं। नॉट जस्ट न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी अच्छे होते हैं और सॉइल हेल्थ के लिए भी। जो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ग्रो करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो आपकी सॉइल भी हेल्दी रहेगी। इसी से रिलेटेड याद रखेंगे 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बात की गई बाय द एंड ऑफ 2023। इसी के अलावा आप देखेंगे 5-6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो ये लॉन्च किए जाएंगे अंडर भारत ऑर्गेनिक्स। इसके अलावा अगर हम देखें शुगर, राजमा, बासमती राइस, दाल, तूर दाल, चना दाल, ये भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किए जाएंगे। एंड टोटल में अगर देखें तो 20 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023 यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे। फिर इसी के अलावा जो मेन एम रहेगा NCOL का, वो क्या है कि फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराना फॉर दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। इससे जो इनकम होगी वो फार्मर्स को यहाँ पे इनकी आमदनी बढ़ाने में, एज वेल एज यहाँ पर हम देखेंगे इससे जो सप्लाई चेन डेवलप होगी, एज वेल एज जो आपका सॉइल हेल्थ है उसको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये NCOL का एम रहेगा। फिर इसी के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं अमित शाह जी के द्वारा ये भारत ऑर्गेनिक्स को लॉन्च किया गया था, इस नए ब्रांड को, ठीक। फिर इसी के अलावा अमित शाह के द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई है अभी, किसकी? NDDB की। किसकी नई वेबसाइट लॉन्च की गई? NDDB, जो कि है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया का पहला डेडिकेटेड अवार्ड शो फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए पहला डेडिकेटेड अवार्ड शो था। कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। क्या नाम रहेगा? इको वॉरियर अवार्ड्स, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट, जो एक इम्पैक्ट डालते हैं अपने कंट्रीब्यूशन से एनवायरनमेंट पर, उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है बाय दिस इको वॉरियर अवार्ड्स। ये फर्स्ट एवर एडिशन था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए ये लॉन्च किया गया था। इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया बाय भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रहेंगे। इस अवार्ड की ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? इको अवार्ड्स को ये ऑर्गेनाइज कराया गया था इंडियन वॉरियर्स एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन के द्वारा इनको ऑर्गेनाइज कराया गया था। फिर यहीं पे कुछ अवार्ड्स याद रखेंगे, ये 5 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए थे। 2 कैटेगरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, एक तो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और दूसरी आ जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें तो डॉक्टर मोहन राम, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करें तो रितेश सरोथिया। आई रिपीट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें तो डॉक्टर मोहन राम को सम्मानित किया गया, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड की बात करें तो रितेश सरोथिया को यहां पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पर। अभी रिसेंटली NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है UPI सेफ्टी एम्बेसडर। ये UPI सेफ्टी एम्बेसडर का काम क्या रहेगा? बेसिकली UPI के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना और लोगों को जागरूक करना कि UPI एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है फॉर पेमेंट। एंड इसी के लिए किनको अपॉइंट किया गया है UPI का सेफ्टी एम्बेसडर? वो रहेंगे पंकज त्रिपाठी सर। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये काफ़ी फेमस एक्टर है। इनको एक बहुत ही दिग्गज नाम से भी जाना जाता है, जो कि है कालीन भैया, क्योंकि इनका जो रोल था मिर्ज़ापुर में, उनके लिए इनको कालीन भैया के नाम से भी काफ़ी फेमस रहते हैं। इनका जो पहला नेशनल अवार्ड मिला था, नेशनल फिल्म अवार्ड, इनको 2018 में मिला था, और इनको फिर सेकंड नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2021 में। NPCI की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2008 में ये लॉन्च हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र इनका हेडक्वार्टर रहेगा, और यहाँ पे MD एंड CEO कौन रहेंगे? दिलीप एसपे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने यहाँ पर अभी 2 ड्रोन्स को इंपोर्ट किया है, बाय करने की बात करी फ्रॉम इजराइल से। ये जो ड्रोन रहेंगे ये है मेल UAS। मेल UAS क्या होता है? मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, करेक्ट, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये आपके ड्रोन रहेंगे। 2 ड्रोन का नाम क्या रहेगा? एक है हर्मीस 900 और दूसरा ड्रोन रहेगा आपका हेरॉन
मार्क 2 ड्रोन, हर्मीज 900 स्टारलाइनर एंड हेरॉन मार्क 2, ये आपके 2 ड्रोन रहेंगे जो कि अभी इनसे प्रोक्योर किए जाएंगे इसराइल से। एंड इसराइल बेस्ड एल्बिट सिस्टम्स कंपनी का नाम है जो इनको डेवलप करती है। तो याद रखेंगे 2 ड्रोन्स हैं इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोक्योर किए गए, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, मतलब हम कह सकते हैं इंडियन फोर्सेस के द्वारा यहाँ पे प्रोक्योर किए गए फ्रॉम इसराइल। इन 2 ड्रोन का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। टीबी क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस। कहां पर होता है? आपके लंग्स में होता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, राइट। तो यहां पर अभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट रिलीज की गई। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था? तो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था, करेक्ट। एंड इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि 7.5 मिलियन लोग टीबी से इफेक्ट हुए 2022 में अलोन, मतलब साल 2022 में 7.5 मिलियन लोग इफेक्ट हुए थे टीबी से, जो कि हाईएस्ट एवर है सिंस 1995। देन याद रखेंगे 2022 में इतने ज़्यादा रिकॉर्ड है हमें क्यों देखने को मिले थे? रीज़न बीइंग कोविड-19 की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो केसेस में राइज देखने को मिला ऑफ टीबी। एंड ये जो डाटा लिया गया है 192 कंट्रीज का यहाँ पे डाटा लिया गया। फिर यहीं पे हम देखेंगे कि कोविड-19 की वजह से जो डेथ्स हैं वो भी ज़्यादा बढ़ गई थी, जो आपके टीबी से इफेक्टेड लोग थे। इवन यहाँ पे एक डाटा लिया गया है कि हमें टीबी को 90% से रिड्यूस करना है बाय 2023 से लेके 2027 के बीच में, करेक्ट। मेन चीज़ें क्या याद रखनी है? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किसके द्वारा? WHO के द्वारा रिलीज की गई। टीबी कहाँ पर होता है? आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। एंड 7.5 मिलियन लोगों को यहाँ पे टीबी हुआ इन 2022, जो कि हाईएस्ट एवर है सिंस 1995। नेक्स्ट यहीं पे देख सकते हैं ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट थी। 7.5 मिलियन लोग इफेक्ट हुए थे टीबी से 2022 में। रिलीज किसके द्वारा? WHO के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने साइन किया एक पैक्ट ऑन रेगुलेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स विद विच कंट्री? मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की रेगुलेशंस के लिए, करेक्ट, एक दूसरे को क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, बेटर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए आपके मेडिसिनल यूज के लिए, करेक्ट। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये MOU साइन किया? नहीं, MOU नहीं, मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट, MOI साइन किया यहाँ पर, तो वो रहेगा नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड के साथ ये MOI साइन किया। फिर यहीं पे एक टर्म आ जाती है वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम। ये वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का भी 2nd एडिशन हुआ था, 6 से लेके 8 नवंबर के बीच में ये ऑब्जर्व किया गया था। एंड इस वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का एम क्या रहेगा कि जो मेडिसिन हैं, करेक्ट, वो बेटर क्वालिटी की मेडिसिन होनी चाहिए, करेक्ट, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए एंड वो टाइमली एंड क्वालिटी के साथ लोगों को जब जरूरत हो तब पहुंच जानी चाहिए, करेक्ट। मतलब एक्सेस उसका ज़्यादा बेटर होना चाहिए एंड जो प्रोडक्शन है वो भी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। अगर वो चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं होगी एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी तो जो लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए उस मेडिसिन का वो नहीं मिल पाएगा, सिर्फ अमीर लोग ले पाएंगे, जो कि गलत है, ठीक है। एंड जो ये 2nd एडिशन ये कहाँ पे हुआ था? हॉग नीदरलैंड में ही हुआ था। एंड ये जो मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड, ये कहाँ साइन किया गया था? ये भी हॉग नीदरलैंड में ही साइन किया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का जो मेन आपके की पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं, वो क्या रहेंगे? टू इंक्रीज द एक्सेस टू मेडिसिन एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज, टू लेवरेज रीजनल एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, टू एक्सप्लोर कलेक्टिव स्ट्रेटजीज, ताकि जो इम्पैक्ट है इसका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी पे और अच्छा हो सके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस स्टेट ने टॉप किया? विच स्टेट हैज टॉप्ड द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? आप इक्विटीज में एक बंडल करके अलग अलग म्यूचुअल फंड्स बना देते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड किस स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया इन द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? तो महाराष्ट्र स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया, सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है महाराष्ट्र। उसके बाद आ जाती है गुजरात स्टेट। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र ने 7.47 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। गुजरात की बात करें तो 2.21 लाख करोड़ की। फिर कर्नाटका 3rd पोजीशन पे आ जाता है विद 1.99 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें म्यूचुअल फंड सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, तो 25.85 लाख करोड़ की हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, करेक्ट। लोग अब जैसे SIP करा लेते हैं। SIP क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नेक्स्ट आ जाता है फिर वर्ल्ड क्वालिटी वीक। 6 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में वर्ल्ड क्वालिटी वीक ऑब्जर्व करते हैं एंड ये 2nd वीक ऑफ नवंबर में ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है। इन द 2nd वीक ऑफ नवंबर ये वीक हम ऑब्जर्व करते हैं एंड इस बार 6 से 10 नवंबर के बीच में था। थीम थी क्वालिटी रियलाइजिंग योर कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल, करेक्ट। चलिए और याद रखेंगे ये वर्ल्ड
क्वालिटी वीक 6 से 10 नवंबर के बीच में और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया 14th एमिशंस गैप रिपोर्ट 2023। दूसरा, वज्र प्रहार 2023, ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन विच टू कंट्रीज। और तीसरा, एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए आप सभी की तरफ से, एंड जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना आप सभी के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इससे आपकी रिविजन होगी और आपको काफ़ी चीज़ों में यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट ला सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.